Good evening and welcome everyone to this class on Indian economy. So in this class we are going to talk about the fiscal policy, the types of fiscal policy. Yesterday's terminology, I hope all of you have revised it all. The terminology that we saw in the yesterday's class: expansionary fiscal policy, contractionary fiscal policy, neutral fiscal policy, all these things. It is usually undertaken when an economy is in equilibrium. Government spending is fully funded by the tax revenue. Neutral fiscal policy. We have seen this PPT. Toll tax is a consumer based thing. Okay, toll tax is when you access something and you have to pay the tax. That is toll tax. Clear? When you access a service and you have to pay the tax, that is toll tax. But here toll tax is very specific in nature. Cess is when you are paying the tax over and above that tax, no matter whatever you are purchasing. Even if you are paying simple income tax, then also you have to pay the cess. So cess is generally applicable. Cess is generally applicable. Clear? Governments reduce the taxes and increase the public spending in order to increase the demand in the economy. Increasing public spending means the government spends more money in the economy on things such as infrastructure. ये क्लियर है सबको? ये हमने पहले से कवर कर रखा है वैसे तो. क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? जो डाउट्स हैं आज आप डाउट्स पूछ सकते हो. आज थोड़े डाउट्स एंटरटेन कर लेते हैं. फिस्कल पॉलिसी में वी हैव कम अ लॉन्ग वे. सो ट्रांसफर टू दी स्टेट्स, कैसे कैसे ट्रांसफर्स होते हैं मैंने ये भी बताया था. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का डिफरेंस, राइट? सो इफ यू वर टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर द कंटूर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, all these things come under GST, right? All these things come under fiscal policy, right? Okay, so fine guys. Shally, how is tax shifting when the rate of tax is less? Tax shifting hasn't got anything to do with rate of tax being lower or higher. Okay, even if the rate of tax is high or low, tax shifting is when the tax incidence is being passed on to tax impact. When the person who is paying the tax is recovering it from somebody else, that is tax shifting. So tax shifting does not result in anything called as tax shifting is not resulting in anything like that. ठीक है? तो tax shifting का कम या ज़्यादा होने से कोई लेना देना नहीं है. आप ध्यान से समझो शैली. Tax shifting when the rate of tax is less. How is tax shifting? Tax shifting it is transfer of burden from one person to another. When I am paying the tax, I am shifting the burden onto you. If the rate of tax is less or high, that doesn't matter. That hardly matters here. उसका कोई impact नहीं आता. Tax कम हो या ज़्यादा हो, उसका कोई impact नहीं आता, right? GST, change the legislation, slide number 148. I'm unable to understand the table. Slide 148, okay.
Slide 148 is this. Is it the one you want me to explain? काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी मैं बता देता हूं क्या होती हैं. Is it the one? How special additional duty leads to? Special additional duty is a custom duty, leads to offset of VAT. Leads to offset of VAT in this way that offset of the state VAT in the sense that on the items which are imported, right? Which are duties which are domestic, I mean on the goods which are domestically manufactured, on those goods earlier VAT used to be levied. उन गुड्स पे पहले वैट इम्पोज होता था, ठीक है, वैट लेवी होता था. लेकिन जो गुड्स सेम नेचर ऑफ गुड्स जो डोमेस्टिकली बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, लेकिन वही सेम नेचर ऑफ गुड्स को, आई विल एंटरटेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वही सेम नेचर ऑफ गुड्स को यदि बाहर से लाया जा रहा है तो उन पे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी 4% पे लगाई जाती थी. ठीक है, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी 4% की. If this is India, okay, in the state of Maharashtra, commodity X is being manufactured. But if the commodity X is being manufactured, there used to be a GST on this, or let's say VAT on this. Okay, there used to be VAT on this, now it is GST, but we are talking about VAT only. This is commodity X. But if the same commodity X is being brought into India, then instead of VAT, 4% special additional duty, customs duty will be charged. So this is offsetting the VAT in a way, because on an imported item VAT cannot be levied, but special additional duty could be levied. So this way special additional duty is offsetting the state VAT. Clear? Now please write down certain types of countervailing, I mean duties and all. Customs duty is clear to everyone? Customs duty. Okay Vivek, please hold on. Pehle I want to complete this agenda of the class also. Please write down the types of customs duties. Please write down some note on, or yeah, simply लिख लो notes on duties on imported goods. Notes on duties on imported goods. Notes on duties on imported goods will be the heading on the page of your notebook. Customs duty. Customs duty. Custom duty is the tax imposed on import and export of goods. Customs duty is the tax imposed on import and export of goods. Customs duty is the tax imposed on imports and exports of goods. ठीक है, सिंपल.
In the case of these duties, revenue is, in the case of customs duties, in the case of customs duties, revenue is not of prime concern. Tax revenue is not of prime concern. In the case of customs duties, earning tax revenue is not of prime concern. But considerations like in the case of customs duties, collecting tax revenue or earning tax revenue is not of the primary concern. Rather, considerations like giving a boost to manufacturing in India, giving a fillip or boost, giving a fillip to manufacturing in India, giving a fillip to manufacturing in India, comma, disincentivizing the import of unnecessary items, disincentivizing the import of unnecessary items. Disincentivizing the import of unnecessary items, comma, keeping India's current account deficit under check. Under check. Is more important. Is sought to be achieved through. Is sought to be achieved through. Is sought, SOUGHT, is sought to be achieved through customs duty. Clear? Import duties are generally of the following types. Import duties are generally of the following types. Number 1, basic duty. Import duties are generally of the following types. Number 1, import duties are generally of the following types. Number 1, basic customs duty or basic duty. Basic customs duty or basic duty. Additional customs duty. Number 2, additional customs duty. Additional customs duty. Number 3, countervailing duty.
काउंटरवेलिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है। नंबर 4 एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेफगार्ड ड्यूटी। और सेफगार्ड ड्यूटी, क्लियर। वन बाय वन वी विल कवर। बेसिक कस्टम ड्यूटी मैंने बता दिया कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसके बारे में लिखो। countervailing duty, the rate of countervailing duty are trade import tariffs imposed to nullify the adverse effect of subsidies. CVDs लिख लो सिंपल फटाफट। CVDs are countervailing duties are trade import tariffs imposed to, they are tariffs, it is a duty imposed to nullify the adverse effect of subsidies. It is a duty imposed to nullify the adverse effects of subsidies being provided in the country of origin. चाइना अगर अपनी कंट्री में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, स्टील पे अगर चाइना अपनी कंट्री में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, स्टील का एक्चुअल प्राइस होता है 900 रुपीज़, लेकिन चाइना में प्रोवाइड करी गई सब्सिडी की वजह से स्टील का प्राइस है 700 रुपीज़ इंडिया में, तो 200 रुपये की एक्स्ट्रा ड्यूटी हम लगा देंगे, ठीक है, लगभग 25% टैक्स, 30% टैक्स। ओके संजीव, कल हमारे यहाँ से थोड़ा इशू था इंटरनेट का, आज नहीं है, ठीक है। तो 30% टैक्स इंडिया लगा देगा, इस टैक्स को इंडिया क्या बोलेगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, क्लियर। To counter the adverse effects of subsidies. क्लियर है? Clear? These are imposed only under WTO rules. These are imposed only under World Trade Organization rules. These are and are also called as anti-subsidy duties.
Countervailing duty is also called as anti-subsidy duty. These are imposed after investigation by the importing country. Clear? क्लियर है ये सबको? अब आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी और इसमें डिफरेंस क्या होता है ये भी देखोगे अभी. एंटी डंपिंग ड्यूटी, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं डंपिंग का. डंपिंग रेफर्स टू दी practice in the international trade dumping refers to the practice in the international trade dumping refers to the practice in the international trade dumping refers to the practice in the international trade in which manufacturing country sells the product in the importing country at a price above the price being received in the डोमेस्टिक कंट्री. ठीक है, यहां पे स्टील का प्राइस मिल रहा था 700 रुपए. चाइना में फॉर एग्जाम्पल इन चाइना देयर वाज अ ग्लट, देयर वाज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन अ पर्टिकुलर ईयर. फॉर नेक्स्ट 2 or 3 years देयर वाज सो मच ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील in the last 3 years that industry feels that it is now better to shut the shop. It's now better to shut down some of the factories of steel. Some of the factory owners are thinking that way. But China knows that if the same steel is sold to India for 3 or 4 years, even if at a loss, then Tata Iron and Steel Company would be made to bleed. उनको भी प्याज के आंसू रुलाने वाला काम करना. ठीक है, टिस्को को और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करवाने के लिए जानबूझ के अपने वहां का स्टील सस्ते में यहां पे बेचना. ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म करने के लिए, इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म करने के लिए. अब जानबूझ के चाइनीज गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई बात नहीं, 700 रुपए का स्टील पड़ रहा है, तुम प्रोड्यूस करो. अगर इंडिया में 600 रुपए में भी बेचना पड़ रहा है, 100 रुपए हम तुम्हें देंगे. 100 रुपए चाइनीज गवर्नमेंट देगी. ठीक है, वहां पे कितने का बिक रहा है? 700 रुपए का. यहां पे 600 रुपए का बेचना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं. इंडिया में 600 रुपीज का बिकेगा तब भी कोई बात नहीं. ठीक है, क्योंकि इंडिया में ये जो स्टील है ये 650 रुपीज का डोमेस्टिक प्राइस है इसका. इंडिया के डोमेस्टिक प्राइस से कम पे बेचने के लिए इंडस्ट्री को मजबूर किया जा रहा है. इंडस्ट्री को ये कहा जा रहा है 100 रुपीज तो हमसे ले लो, प्रोड्यूस करते रहो, फैक्ट्री बंद मत करो, ताकि ये फैक्ट्री चलती रहे. एक्सेस कैपेसिटी ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन चाइना विल रिमेन इंटैक्ट so as to make the Indian companies bleed in the next 3 or 4 years. इंडियन कंपनीज को बाद में नुकसान पहुंचाने के लिए 2-3 साल कोई भी कंपनी कितना नुकसान झेल लेगी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद वो बंद हो जाएगी. तो ये जो सस्ते में स्टील बेचा जा रहा है, बाद में इसको रिकवर किया जाएगा महंगे प्राइस पे. जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचेगी ही नहीं तो स्टील इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा. क्लियर? समझ में आया? दिस इज व्हाट चाइना डिड टू इंडिया इन केस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. इंडिया को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा बेचे गए कि इंडिया की अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, सरकारी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज
जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती थी वो बंद हो गई। अब जब वो बंद हो गई तो आज हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हैं। समझ में आया? डंपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस इन द इंटरनेशनल ट्रेड in which manufacturers export a product to another country at a price below the domestic market price. Clear? Anti-dumping duty is therefore levied on such products. Anti-dumping duty is therefore levied on such products. Anti-dumping duty is therefore levied on such products that are believed to have been priced below their domestic market price. गवर्नमेंट ओनली, और कौन इंपोज करेगा? गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। दैट आर बिलीव्ड टू हैव बीन प्राइज्ड बिलो देयर डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। That are believed to have been priced below their domestic market price. So the price is sometimes ये किस लिए किया जाता है? ताकि प्राइस इतना हो जाए जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल रही। प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, ठीक है, सस्ते में बेचा जा रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट से। दिस इज कॉल्ड अ केस ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। विच ऑफ द ड्यूटीज इज लेवाइड टू चेक द प्रीडेटरी प्राइसिंग? अब इंडिया क्या करेगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, ठीक है। प्रियांशी, इज इट क्लियर? इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी अप्लाई कर देगा, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक, जो चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट प्राइस है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट है, उससे भी कम में बेचने की कोशिश हो रही है यहां पे। देन नो डंपिंग ड्यूटी। WTO allows the imposition of dumping duty. WTO allows the imposition of anti-dumping duty only when the goods are being priced below the production cost of these goods in China. Only when the goods are being priced for the Indian market at a price below the production cost. Production cost is 700. Deliberately they are being priced at 600. This is a case of predatory pricing. प्रीडेटरी प्राइसिंग के केस में जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। इफ द क्वेश्चन कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर लेवाइड फॉर चेकिंग द प्रीडेटरी प्राइसिंग? एंटी डंपिंग ड्यूटी। चाइना को स्टील की जरूरत नहीं है। चाइना अपना स्टील जो है, माल जो है, इंडिया में डंप कर रहा है इन दैट केस। क्लियर? Clear?
So all these things are there. Now इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तीनों टाइप्स की ड्यूटीज ये हैं हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज. क्लियर? As per the GST law, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको बाद में करेंगे. स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, प्लीज राइट डाउन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. Special additional duty is the duty levied on those goods in lieu of domestic tax. पहले जब वैट हुआ करता था तो उसकी जगह स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा दी जाती थी. ठीक है, इंडिया में कोई भी इंपोर्टर ये कह के गुड्स को लेके आता था गुजरात में या कहीं पे कि हम इसको फर्दर एक्सपोर्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो जब इंपोर्ट करे जाता था तो क्या होता था, एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती थी. ये कहा जाता था कि ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जब आप एक बार एक्सपोर्टर जो है, इंपोर्टर जब गुड को यहाँ पे लेके आएगा, सेमी फिनिश्ड गुड को, हो सकता है कि वो किसी कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड को जब वो इंडिया में लेके आएगा, इसको यहाँ पे प्रोसेस करके कंप्यूटर बना देगा फाइनली, और ये कंप्यूटर जब इंपोर्ट कर देगा तो जो मदरबोर्ड पे जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई गई थी 4%, वो रिफंड हो जाती थी. इसलिए इसको कहा जाता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी यूज्ड टू ऑफसेट वैट और डोमेस्टिक टैक्स जीएसटी. ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी तभी लगाई जाती थी. As no central or state tax, no central sale tax or VAT is levied on the imported items, the levy of SAD was intended to create a level playing field. Clear? A special additional duty was levied from budget 2006-2007. बजट 2006-07 से ये शुरू किया गया था. ठीक है, on the imported items so as to create a level playing field between imported items and domestically manufactured items. Clear? ठीक है, एज पर मॉडल जीएसटी लॉ, नाउ राइट दैट सेम लाइन. लास्ट लाइन रिपीट कर दो गाइस, मेरे को नहीं पता क्या बोला था. स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वॉज लेवाइड टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन दी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड इंपोर्टेड गुड्स.
Special additional duty was levied since budget 2006-7 so as to create a level playing field between imported goods and domestically manufactured goods. Special additional duty is the duty levied on the imported goods so as to create a level playing field between imported goods and domestically manufactured goods. It is the duty on those goods in lieu of It is the duty on imported goods. It is the duty on imported goods in return of. In lieu का मतलब ये होता है in return of LIEU. lieu का मतलब बदले में, ठीक है. In lieu of the VAT on domestically manufactured goods. It is the duty on imported goods in lieu of VAT on imported goods. जब आप इंडिया में पहले कुछ बनाते थे जीएसटी से पहले, तो क्या होता था, उस पे तो वैट लगता था, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, फिर स्टेट पे मैन्युफैक्चरिंग टैक्स वैट लगता था. लेकिन जब आप इंपोर्टेड गुड लेके आ रहे हो तो सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, ठीक है. कस्टम्स ड्यूटी लगी 10%, 15%. डोमेस्टिक टैक्सेस इतने ज़्यादा लगते थे कि बाहर से गुड्स को लेके आना सस्ता पड़ता था. तो इसीलिए इस लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हो गई महंगी और बाहर से लाई वाली जो गुड्स हैं वो हो गई सस्ती. तो ये बाहर से लाई वाली गुड्स में और इन दोनों में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती थी. जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ो. जो बताया है अभी और जो लिखवाया है उसको पढ़ो. यस, 4% रिफंड तभी मिलेगा जब आप बिल दिखा दोगे कि हाँ आपने डेविड कॉलमैन हेडली को यूएसए में या साउथ कोरिया के पिंग पोंग उनको बेच दी हैं, ठीक है. तो उससे क्या होगा, डॉलर्स आएंगे कंट्री में विदेशी मुद्रा को अट्रैक्ट करने के लिए. डोमेस्टिकली तो लेवल प्लेइंग फील्ड रहा ना. अगर डोमेस्टिकली कोई भी वैट भी अगर डोमेस्टिकली कोई कंपनी जो है मदरबोर्ड बना रही है उसको वैट देना पड़ा है तो वैट भी रिफंड हो जाता था, ठीक है. अभी रिसेंटली एक स्कीम थी रिफंड ऑफ टैक्सेस वाली, जो स्कीम आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट लेवाइज होती थी उनको रिफंड कर देती थी. स्टेट लेवाइज मतलब स्टेट लेवल पे जो टैक्सेस लगते थे, ठीक है. मैं उसके बारे में भी बता देता हूं. Let me just tell you the exact name of that scheme. Refund of state rebate of state levies scheme, ठीक है. स्टेट लेवल पे चाहे आप इंपोर्टेड गुड्स लेके आ रहे हो उनको बाद में प्रोसेस करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो भी आप डॉलर्स लेके आ रहे हो. अगर आप डोमेस्टिकली कुछ गुड्स बना रहे हो उन पे आपको लोकल कुछ टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, फिर आप उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो भी आप डॉलर्स लेके आ रहे हो. दोनों केसेस में आपके वो सारे पैसे जो आपने टैक्सेस पे किए थे वो वापस हो जाएंगे,
Clear? Clear to everyone? Take 2 minutes and let me know if it is clear to you. It is returned मतलब yes, it is returned. It is a time taking process. It delays, there are a lot of delays in this, but yes, they are returned. ठीक है, अगर आप बिल दिखा दोगे वाई इज इट रिटर्न, ये वाई का मतलब नहीं है यहाँ पे, इसीलिए रिटर्न करा जाता है माय डियर कि डॉलर्स लेके अगर आप आ रहे हो तो आप रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट करवा रहे हो। आरबीआई के रिजर्व्स में डॉलर यदि आ जाएंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा उससे। ये कुछ ऐसा सा हिसाब है, जैसे अब तुम पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा वियर्ड सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बच्चा अपनी सैलरी, या जो बच्चे जो लायक होते हैं ना, वो जो अपनी सैलरी और ये सारी इनकम पेरेंट्स को देते हैं, तो पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, उनके नाम सारी ज़मीन जायदाद कर देते ना। ये वही वाला सिस्टम है, समझ रहे हो। जब कंट्री में आप कंट्री के लिए इंपोर्टेड डॉलर्स लेके आ रहे हो तो आप हमारे रुपी की वैल्यू को स्ट्रेंथन कर रहे हो। जब आप डोमेस्टिक रुपी की करेंसी की वैल्यू में स्ट्रेंथन कर रहे हो, आरंट यू एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द इकोनॉमी। जैसे मैं फन एकेडमी के लिए था, मैं बहुत सारा पैसे लेके आता था, ठीक है, रेफरल्स और ये सब। आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस चल रहे हैं, तुम लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पे या कहीं कहीं पे। तो वो क्या होता था कि वो दे विल देन रेसिप्रोकेट कि ठीक है तुम्हारे सारे टैक्सेस माफ, क्योंकि यू आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द कंट्री। समझ में आया? यस, देन वाई टू लेवाई अ टैक्स। हमारा पर्पस क्या है? मैंने बताया कि कस्टम्स ड्यूटी का पर्पस ये नहीं है कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है। कस्टम्स ड्यूटी का पर्पस ये है कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स कंट्री में ना हो, नंबर 1। लेकिन अगर मैं कोई अननेसेसरी इंपोर्ट कंट्री में करता हूं और उसको फिर रिफर्बिश करके, रीपैकेजिंग करके, कुछ रेट्रोफिट करके उसको मैं साउथ ईस्ट एशिया में बेच देता हूं। यूरोपियन यूनियन से मैं कुछ गुड्स लेके आया, मैंने उनको एशियान कंट्रीज में बेच दिया, फिलीपींस में बेच दिया, तो मैं तो अपनी देश के लिए नेट फॉरेन इनकम अर्नर हूं ना, मैं स्पेंडर थोड़ी हूं। मैं कोई गोल्ड लेके आऊं, उसको गवर्नमेंट जो है कस्टम्स ड्यूटी लगा के मेरे को डिस्करेज करना चाह रही है। लेकिन अगर मैं उस गोल्ड की ज्वेलरी बना के साउथ कोरिया वालों को चूना लगा दूं तो मेरी कंट्री के लिए तो ये अच्छा है। अगर मैं रॉ डायमंड्स लेके आऊं अफ्रीका से तो ड्यूटी लगेगी, लेकिन अगर मैं उस डायमंड को पॉलिश डायमंड बना के बेच डालूं यूएस या यूरोप वालों को तो फायदा है मेरी कंट्री का। ये फिस्कल पॉलिसी की यही ब्यूटी है कि कितनी केयरफुली आपका इंडिया का कैपिटल, इंडिया के लोगों का कैपिटल मतलब इंडिया का कैपिटल कैसे राशनिंग करनी है, कैसे उसको एलोकेट करना है, ये बहुत ब्यूटीफुली करती है ये पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी में ये सारे लीवे और गुंजाइशें अवेलेबल नहीं होती जो कि इसमें होती हैं, राइट। आई वाज सर्चिंग फॉर द डस्टर। नाउ कमिंग हियर, अब जब लगे हाथ एक और चीज बता देता हूं। फिस्कल पॉलिसी में क्या है कि गुजरात में एक कांडला नाम का एक पोर्ट है, ठीक है। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उनका कांडला में प्लास्टिक चिप्स का काम है। प्लास्टिक चिप्स होते हैं कि छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने, ठीक है, जिनको आप जोड़ दोगे और मेल्टिंग कर दोगे तो हर बड़ी इंडस्ट्री उनके प्लास्टिक के चिप्स को, ये छोटे छोटे चिपसेट्स होते हैं इतने सही साइज़ के, वो उनको मेल्ट करके आप आइस ट्रे बना सकते हो या आप कोई भी प्लास्टिक की शीट बना सकते हो। कीबोर्ड बनाना है तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो उनका प्लांट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई टैक्स नहीं लगता, आप कुछ भी इंपोर्ट करो उस पर कोई टैक्स नहीं है।
आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए कुछ परचेज कर रहे हो, आपने सिर्फ ये दिखा दिया कि आपका यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, फैक्ट्री का एड्रेस है A/40 या जो भी, अगर आपने बिल उस नाम का कटवा दिया तो आपको इंपोर्ट बिल कॉन्कॉमिटेंटली दिखाना पड़ता है, एक्सपोर्ट बिल दिखाना पड़ता है कि आपने डोमेस्टिकली 1,40,00,000 की गुड्स परचेज करी थी, ठीक है, और आपने जो गुड्स बेची 2 करोड़ रुपए की वो गुड्स बेच दी, तो आप पे इनकम टैक्स तो लगेगा, लेकिन कोई भी जीएसटी वीएसटी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स एज यू कैन से देम, ठीक है, तो मतलब समझ में आया। ये हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का, वो मैंने नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरफ अगर कोई गुड्स आती हैं, उन पे कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 14 लाख टोटल 14 लाख करोड़ रुपीस का इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से देश में डॉलर्स आते हैं, 14 लाख करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज। ड्यूटी फ्री पोर्ट्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है, ड्यूटी फ्री जोन्स कहा जाता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। सभी फैक्ट्रीज के लिए यहां पे प्लांट लगाना आसान नहीं होता, क्यों? जमीन बहुत महंगी होती है, लैंड इज अ कॉस्टली थिंग देयर। तो अभी के लिए हमने सिर्फ एक ग्लिम्प्स, एक झलक देख ली कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। क्लियर? Special economic zones and national investment and manufacturing zones is something that I will cover later. अब लिखो अगला in continuation of whatever you have written so far. As per the GST law, GST will subsume countervailing duty, special additional duty, countervailing duty and special additional duty. As per the GST law, GST will subsume countervailing duty and special additional duty. Clear? However, basic custom duty will continue to be applicable. Basic customs duty, in other words, has been kept outside the purview of GST. Basic customs duty has been kept outside the purview of GST. So impact, write another heading, impact of GST on imports. Import as interstate supply. Imports are treated, number one, impact of GST on imports. Number one, imports are treated as interstate supply. Imports are treated as interstate supply, as if you are selling the goods from तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश, पंजाब टू हरियाणा, ठीक है। तो क्या लगता है कितने % रेट लगेगा?
विद इन दी स्टेट हो तो भी 18% है, ठीक है, विद इन वन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हो तो 9% उस स्टेट का और 9% डेस्टिनेशन स्टेट का और 9% सेंटर का, है ना. बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इट डिपेंड्स फ्रॉम आइटम टू आइटम. देवयानी, it depends from item to item, it differs from item to item. So import as interstate supply, import into India will be considered as interstate supply under GST law, and accordingly import will be considered as interstate supply under GST law, and accordingly will attract IGST. कितना IGST होगा? किसी पे 12% हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी आइटम. अगर कंप्यूटर आइटम्स हैं तो 12% हो गया, 6% स्टेट का और 6% सेंटर का. कौन सी स्टेट का? जिस स्टेट में गुड्स डिस्टाइंड हैं. हो सकता है महाराष्ट्र में कंटेनर उतरा हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली गुड्स पंजाब में बिक रही हैं, तो वो ये जो हाफ है 12% का, हाफ 6%, ये पंजाब को चला जाएगा. क्लियर? Imports are treated as an interstate supply and hence are charged with integrated GST. Clear? ठीक है. देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. GST एक्ट, import of services. Number 2, impact of GST on imports. GST Act puts the liability of payment of imported services on the service receiver. ठीक है, अगर कोई दुबई की कंपनी है, उससे आप शिपिंग सर्विसेज अवेल करके इंडिया में कोई गुड्स ला रहे हो, उसको जब आप पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, उस कंपनी को नहीं, क्योंकि वो कंपनी तो दुबई की है, वो तो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिमेंबर दैट. पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. GST Act puts the liability GST Act puts the liability for the payment of tax on service receiver in case of imported services. That means services provided by person residing outside India. GST Act puts the liability for GST Act puts the liability for payment of tax on the service receiver in case of imported services. That is, if such services, that is to say that if such services are provided by a person residing outside India. This is similar to the provision of reverse charge.
क्लियर? लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन दी सर्विस रिसीवर, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन दी सर्विस रिसीवर। माय डियर्स, देखो जब एक कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं ना, उसके बाद यू शुड बी एबल टू राइट इन योर ओन फ्रेजियोलॉजी ऑल्सो, ठीक है? बार बार रिपीट कराने की जरूरत नहीं होती, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर हैंडीकैप्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। मैं कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखता हूं, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो उसको अपने आप बनाओ। मैं क्या करता था क्लास में, जब स्कूल टाइम में भी या कहीं पे भी, हमेशा लाइफ में आप ये करना कि पहले अगर कोई सामने वाला टीचर बोल रहा है, या तो टीचर समझा ना रहा हो, ठीक है, अगर टीचर समझा रहा होता है तो पहले उसे सुन लो, बाहर में गया लिखना 10 मिनट के लिए, ठीक है? अगर सुन लोगे क्लास खत्म भी हो जाएगी। मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, ठीक है, मैं आधी कॉपी ऐसे लिख के आता था, आप मानोगे, मतलब एक वर्ड इधर लिखा हुआ है, कीवर्ड दुबई या कुछ ऐसा, या लाइबिलिटी, फिर उसके बाद डैश रहता था। लिखाई इतनी अच्छी नहीं थी भगवान की कृपा से, तो ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी रेस्ट ऑन दी ऑनर, फिर आगे एक और कीवर्ड लिखा होगा, ठीक है, दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर। मैं ऐसे करके डैश 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 छोड़ देता था। फिर जब घर पे आता था तो पेरेंट्स जो थे दोनों सर्विस में थे, ठीक है, स्ट्रिक्ट थे थोड़े पढ़ाई वढ़ाई को लेके, वे बोलते थे पढ़ाई करो, तो मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स करता था। और क्या करता, मतलब सुन ली थी स्टोरी, दिमाग में बैठ गई, उस वजह से काम चलता था अपना, समझ रहे हो? नंबर अच्छे खासे आ जाते थे। अगर मैं ऐसे लिखता रहता बिना समझे तो फायदा नहीं था, ठीक है? तो इसलिए ट्राई टू रिटेन द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। यूपीएससी एग्जाम इज ऑफ दैट नेचर ओनली। तो मैं सोचता था स्कूल में रटना क्यों पड़ता है, रट्टा भी अच्छा लगाने की आदत थी स्कूल तक, उसके बाद थोड़ी हवा पानी खराब हो गया था, लेकिन स्कूल तक अच्छे नंबर आ जाते थे, समझ रहे हो ना? फिर उसके बाद थोड़ी वो हो गया कि चलो ठीक है, कॉलेज में है तो चल रहा है काम ना हो। हमेशा समझने पे फोकस करो। शैल आई रिपीट नाउ? GST law puts the liability of payment of tax on the service receiver। सर्विस रिसीवर कौन है यहाँ पे? जो अंबानी वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अंबानी इज द सर्विस रिसीवर। अंबानी जीएसटी में रजिस्टर्ड है? यस। अंबानी रेजिडेंट इंडियन है? यस। दुबई की कंपनी है? नहीं है। तो दुबई की कंपनी से टैक्स रिसीव कर ही नहीं सकते। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यदि पड़ा था तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है ना? क्लियर है सबको? मेरी बात को पॉजिटिवली लेना, फायदे में रहोगे। हाँ, वो ठीक है कि जब क्लास में लिख रहे होते तो मन करता है समझ भी लिया, आप लिख भी लें, टीचर जो बोल रहा है वही लिख लें, खुद ब्लंडर करेंगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन मत सोचा करो ऐसा ना हो। क्लियर? इफ सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। Clear? So clear for everyone? तो methods of taxation, regressive tax, proportional tax, canons of equity, certainty. How many of you've read this? How many of you have already covered this? Canon of elasticity, productivity, variety. Be honest. आपके स्कूल में और एक एडवांटेज हम लोगों को ये भी होते हैं, टीचर ज़्यादा फीमेल होते तो ठीक चल जाता है काम, समझ रहे हो? आप लोगों के केस में ऐसा होता होगा, हमारे केस में नहीं होता था, मतलब
लेकिन अगर एग्जाम्पल अच्छे से दे रहे हो तो ठीक है. नाउ प्रोग्रेसिव टैक्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग inequalities of income and wealth by lowering the high income group's disposable income. By disposable income is meant the income left in the hands of the taxpayer. ठीक है, so this is there. No, you haven't read. Very nice. इसको पढ़ोगे खुद, मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है. इसमें नथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम माई साइड. कैनन ऑफ इक्विटी, तो एवरी पर्सन मस्ट पे टैक्सेस इन प्रोपोर्शन टू हिज इनकम. इक्विटी होनी चाहिए. लैफर कर्व इज द थ्योरी, ये तो पढ़ ली थी हमने, डेवलप्ड बाय द सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट. दिस स्लाइड वाज कवर्ड एक्चुअली. These slides were left in your case and in my case. Vertical equity क्या होता है? Canon of certainty मैंने बताया था कि ये मैं बताऊंगा वैसे. तो ये रटने वाला काम है ज़्यादा, रीडिंग आउट वाला. करंट ट्रेंड्स हमारा रह गया, अब रह गया सिर्फ एनकेसिंग पैनल. ठीक है, इन कैनन्स को फटाफट कवर करते हैं, फिर हमारा रह जाएगा एनकेसिंग पैनल, FRBM एक्ट, और देन वी आर डन with this particular PPT as well. ठीक है, स्लाइड नंबर 156 पे है. कैनन ऑफ इक्विटी से शुरू करते हैं फटाफट. कैनन ऑफ इक्विटी ये कहता है कि अगर लैफर कर्व यहाँ पे लगाएं, इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय दिस पर्सन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड. अगर आप टैक्स रेट ज्यादा कर दोगे तो ये जरूरी नहीं है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा. एज यू कैन सी हियर, आपने टैक्स रेट 50 से 80 किया, आपका टैक्स रेवेन्यू टोटल जो है रेवेन्यू कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है जब आप टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो. हालांकि 50 रुपीज़ पर पर्सन आप टैक्स चार्ज कर रहे थे, लेकिन आपका ओवरऑल कलेक्शन ज़्यादा है. आपका ओवरऑल कलेक्शन ज़्यादा है, देख रहे हो ना, ये ज़्यादा है यहाँ पे. तो इसलिए ये कैनन ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि जब गरीब और अमीर पे एक, उनको ये लगेगा कि जो बर्डन है वो प्रोपोर्शनेट है, वो चीज सिंपल रहेगी फिर. ठीक है, अगर आप ज्यादा टैक्स रेट लगा दोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. द कर्व इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट लैफर्स मेन प्रेमाइस दैट मोर एन एक्टिविटी such as production is taxed, the less of it will be generated. A tax cut from 80% to 50% increases the tax revenue. Now, however, modern economists interpret equality or ability to pay differently from Adam Smith. They argue that ability to pay principle calls for progressive income tax. There are two concepts of equity. Horizontal equity. According to the concept of horizontal equity, those who are equal, यानी कि जो लोग यहाँ पे हैं, ये पर्सन A है, ये पर्सन B है, ये इनके हेड्स हैं. ठीक है, दोनों की इनकम 1-1 लाख है, तो दोनों के ऊपर 10% टैक्स लगना चाहिए. वर्टिकल इक्विटी क्या कहता है? वर्टिकल इक्विटी इज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड विद हाउ पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज टू पे टैक्स शुड बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिविजन ऑफ टैक्स बर्डन. ठीक है, जो वर्टिकल इक्विटी मतलब टैक्स जो है हॉरिजॉन्टल तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो बराबर है, A B C D वो बराबरी, लेकिन जो X Y Z हैं, वर्टिकल इक्विटी इनकी बात करता है. ठीक है, any tax system, it is very easy to create horizontal equity, but the beauty of a tax system lies to the extent to which it is able to create vertical equity. गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को कैसे उन सभी पे एक तरह का बर्डन इंपोज किया जाए. तो क्या हमारे यहाँ इनकम टैक्स सिस्टम वर्टिकल इक्विटी की क्रिएट करने की बात करता है? हाँ, पहले 2.5 से 3 लाख रुपए पे 0 टैक्स, 3 लाख रुपए पे नो टैक्स. ठीक है, फिर 3 से 5 लाख रुपए पे 5%, फिर 5 से 10 लाख रुपए पे 10%. राइट, तो ये क्या है? वर्टिकल इक्विटी. जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी पे कम टैक्स है, वाई पे थोड़ा ज्यादा, एक्स पे और ज्यादा, उसके बाद फिर और ज्यादा. इनकम टैक्स भी करता है. क्या जीएसटी करता है? यस, बाय हैविंग 4 इनकम टैक्स स्लैब, 4 इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब रेट्स. जो गरीबों की गुड्स हैं उन पे टैक्स रेट 0, जो लोअर मिडिल क्लास वाली हैं उन पे 5%.
जो गुड्स को गरीब लोग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ओपन व्हीट फ्लावर, खुला आटा 0%, फिर उसके बाद जो लोअर मिडिल इनकम क्लास वाली जो आइटम्स हैं उन पे 5%, ठीक है, फिर उसके बाद जो मिडिल क्लास वाली हैं 12%, उसके बाद जो अपर मिडिल क्लास वाली हैं 18%, उसके बाद जो रिच इंडिविजुअल्स वाली हैं 28%। तो ये क्या है, वर्टिकल इक्विटी है ना, ये वर्टिकल इक्विटी ये मतलब है। और क्या सभी लोग अंबानी अदानी वाले जो लोग हैं, ये आम आदमी वाला काम हो गया, ठीक है, आम आदमी, और ये क्या है, अंबानी वाला काम, ये अदानी वाला काम। ठीक है, ये ए बी सी, कोई और ले लो, अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल इक्विटी हैं। जो लोग सिमिलरली प्लेस्ड हैं उनको सिमिलर रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, जो लोग डिफरेंटली प्लेस्ड हैं उनको डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। क्लियर है, ये सिंपल मतलब इसका ये था। A good tax system must be such as will ensure the horizontal as well as vertical equity. Clear? तो हमारे टैक्स सिस्टम में दोनों फीचर्स हैं, राइट। Canon of certainty, the time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid should be clear and plain to the contributor. इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ फॉर्म का नाम है, इनकम टैक्स पे करने जाते हैं, सरल नाम है, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्या है, कठिन, ठीक है। इसीलिए फॉर्म का नाम चेंज कर दिया 2002 से। मैं बहुत छोटा होता था, पेरेंट्स का वो फॉर्म देखा करता था मार्च 31 को, जैसे आता था सरल फॉर्म, मैं बोलता था ये क्या है, सरल फॉर्म है। तो मैं सरल का मतलब चेक किया, देखा इजी, मतलब हिंदी का मतलब नहीं पता होता था इतनी आसानी से ना, सरल मतलब इजी। तो फिर मैंने फादर से बोला मैं भर दूं, तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग। तो प्रोबेबली ही सेड यू कुड हैव बीन लॉन्च्ड इनटू द गवर्नमेंट एड कि फॉर्म भरना इतना सरल होना चाहिए, बच्चे भी भर सके, है ना। लेकिन उसके लिए इंडिया में क्या करना होता है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है। टैक्स भरने के लिए कंसल्टेंट यदि चाहिए होगा तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है, फिर बहुत ही सरलता से टैक्स इवेजन, नहीं भरते लोग टैक्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कहाँ ही जाएगा, खैर मतलब बिजनेसमैन क्या करता है, सरल का मतलब बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये है, इट इज वेरी सरल टू evade your taxes, right? So this is there. Now plain to the contributor and every other person. A successful functioning of economy requires that people, especially business class, must be certain about the sum of tax that they should be able to, that they are going to pay. नहीं तो फिर अभी आपने ये टर्म सुना होगा, टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म जो है प्रणब मुखर्जी ये टर्म लेके आए थे, प्रणब मुखर्जी की वजह से ये टर्म हुआ था। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो यूपीए की, मतलब कांग्रेस सरकार की लास्ट फ्यू ईयर्स में इमेज को बिगाड़ने के लिए पूरा काम कर रहे थे। मतलब क्या हुआ कि उनको बहुत गुस्सा था कि दूसरी इनिंग्स में 2009 से मनमोहन सिंह को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो उन्हें फिर से गुस्सा आया कि अब तो मेरा नंबर बनता था, मैं सीनियर हूँ कांग्रेस में, तो उनको बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो वो पूरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस की। ठीक वैसे जैसे आजकल लोग जो डिजर्विंग होते हैं, जब उनको ऊपर नहीं पहुंचाया जाता तो वो फन एकेडमी का मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, है ना, पब्लिक जा के वीडियोस कर करके। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी कुछ एजुकेटर्स के वीडियो देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरी बात ही बोल रहा है। नाउ जब इनको मौका नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली एक टैक्स लगा दिया जिसको हम गार रूल्स में समझेंगे वोडाफोन केस में। 1-2 दिन रुक जाओ सिर्फ। गार रूल्स में इन्होंने ये कहा कि जो टैक्स पहले मान लो कि 12% हुआ करता था, मैंने इनकम अर्न कर ली, मैं 2018 में हूं या 1 अप्रैल 2020 में हूं, तो 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने कहा कि जो आपने इनकम अर्न करी थी 2012 से 18 तक, उस पे टैक्स कितना लगेगा, 12 से 18 तक अर्न की गई इनकम पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, 12 से 18 तक की इनकम पे आपने जो 12% टैक्स पे किया था भूल जाओ उसे, अब आप 6% और टैक्स पे करो। तो यानी कि सरकार जो है थ्रेटन कर रही है, गवर्नमेंट इज थ्रेटनिंग पीपल, ठीक है। ये बोल दिया
कि रेट्रोस्पेक्टिवली अ लॉ इज गोइंग टू बी मेड एप्लीकेबल। उस वजह से वोडाफोन का बहुत लंबे टाइम तक केस चला और फाइनली गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपीस लेके 11,000 करोड़ रुपीस का टैक्स गेट सुलझा लिया। 11,000 करोड़ रुपीस लेने बनते थे। प्रणब मुखर्जी ने बैक डेट में अर्न की गई इनकम पे टैक्स लगा दिया 2012 से। ट्रांजैक्शन हुई थी 2008-9 में, उस पे इनकम टैक्स जो उस टाइम का रेट था वोडाफोन कंपनी ने पे कर दिया। जो भी हुआ, बैक डेट से टैक्स लाने का सिलसिला शुरू किया। इस वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी पे जो कॉन्फिडेंस था, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं थी। आप इंडिया में लोगों को बुला रहे हो कि आओ एफडीआई लेके आओ, हम आपसे कम रेट ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे। लेकिन कंपनी के आने के बाद, कंपनी के 6 साल बाद, कंपनी के आने के पैसा कमाने के 6 साल बाद आप ये कहते हो कि नहीं, अब तो जो आपने 12% टैक्स पे किया था, बैक डेट से 18% उसे कर दिया, विच वॉज नॉट changing the tax slabs from this date. If we are standing at 1st April 2020, you can change the tax slab. But how can you say that you have to pay the income tax as per the new tax slab, as per the higher rate of tax on the income earned in the past, when the tax slab wanted you to pay only 12% of tax? This is what we are trying to understand. समझ में आया? यार मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, तुम लोगों ने कितनी फीस पे करी है? 36,500। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि मैं ही प्रधानमंत्री, मैं ही राष्ट्रपति, मैं ही प्रणब मुखर्जी, मैं ही फाइनेंस मिनिस्टर। अब तुम एक काम करो, तुमने जो 36,500 फीस पे करी थी, अब क्योंकि अगर अगले दिन से कोर्स देखना है तो 10,000 और अकाउंट में जमा करवा देना। कैसा लगेगा? क्योंकि कोर्स की फी जो है 6% बढ़ गई है। Periodically revising the fee for the students who are going to join in future is not a bad idea, but periodically changing the fee and making it applicable from the past date and asking students to pay as per the new fee structure is like extortion. समझ में आया? इसको टैक्स टेररिज्म का नाम कहा जाता है। जब अपने पे पड़ती है तो सब समझ आ जाता है ना? जिनको आज पूरी क्लास में कुछ समझ नहीं आया होगा, ये पॉइंट उन्हें भी समझ में आ गया होगा। ये मेरा दावा है इस बात का। यही है भारत, मेरा क्या मुझे क्या। ठीक है, यही है ना मतलब। Vodafone, we are going to understand, that's a separate story altogether. कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, टैक्स पे करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, छोड़ो यार कौन जाए। कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये एक इशू है। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम एंड द टैक्सेस कलेक्टेड मस्ट ब्रिंग maximum revenue to the government. Government has to spend money on collecting the taxes levied by it. Now, canon of elasticity, taxes must be elastic in nature. Government must be able to increase or decrease the tax revenue according to the requirements of the country. Canon of productivity, a tax must be able to yield sufficient revenue to the government, otherwise it will be an unproductive tax. ये सारे थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आज थोड़ी सी जल्दी क्लास एंड करेंगे एंड टुमारो देयर विल बी नो क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्लियर? Vivek, you had some doubt, you can ask about your doubt.
Done. Interest receipts on loans to states and union territories. Yes, प्रतीक. हाउ इज टोल टैक्स एंड सेस डिफरेंट? ये मैंने बता तो दिया, अभी क्लास स्टार्ट होते ही बताया था. सेस जो है जनरली सभी पे लगता है, टोल टैक्स उन्हीं पे लगता है जो कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे कुछ और हो. ठीक है, आप रोड सर्विस एक्सेस कर रहे हो तो आप पे रोड टैक्स ही लगेगा, रोड पे टोल टैक्स, रोड पे चलने का टोल टैक्स ही लगेगा. अगर आप पार्किंग टोल प्लाजा को, एयरपोर्ट की पार्किंग टोल प्लाजा को एक्सेस कर रहे हो तो पार्किंग टोल लगेगा, यानी कि वो स्पेसिफिकली उस सर्विस को अवेल करने के लिए है. लेकिन सेसेस आर जनरल इन नेचर. सेसेस could be imposed on you even if you are not availing that service. ठीक है, जैसे कि secondary and higher education cess being charged on the income. FRBM may be Monday or Tuesday. GAR by Wednesday this topic will be over. Across the three sectors, Pratik, across. Okay, not only for Make in India but also for providing any service or availing any primary services also, primary commodities. Country of origin in case of CVD, country of origin मतलब जिस country में वो goods originate हुई हैं, China in our case, जो मैंने example दिया था उसमें China. I hope that will make it clear for you, Ankita. There was a doubt. Companies will opt for lower tax regime only after they have exhausted their credit on MAT. No, companies have an option to avail of the MAT for next 3 years. ठीक है, तो जो जिन कंपनीज का मैट क्रेडिट है वो कंपनीज अपना मैट क्रेडिट पहले अवेल करेंगी, फिर वो नए सिस्टम में आएंगी जिसमें उनको 22.17% टैक्स पे करना है. क्योंकि अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को 25% टैक्स पे करना है, ठीक है, और मैं 8% मैट का क्रेडिट ले पा रहा हूं, तो मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हुआ? 17. तो फिर मैं नए वाले सिस्टम में क्यों जाऊंगा? नए वाले सिस्टम में मैं नहीं जाऊंगा तब तक जब तक मेरा जो मैट का क्रेडिट है, जो मैंने पिछले 3 सालों में जो मैट पे किया था, पिछले 5 सालों में जो मैट पे किया था, उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं, है ना. क्लियर है? यस प्रतीक, यू आर राइट. Anybody else? Any other doubt? Vivek Yadav, I don't think I have answered your doubt till now. All right, thank you everyone. Credit eligibility in post and prior amendments of GST. ये अगली क्लास में समझा दूं विवेक. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कुसुम. Vivek, I'll explain this in the next class. Okay, so thank you guys for today. All right, please revise these topics. On 15th of September you'll be having a test. All right, thank you.